Sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes. Sir. Okay, good. So, good evening, everyone. I, Shashwat Sanket, welcome you all to another episode of Stethify, the official podcast of IMA MSN UP. Today, on occasion of Teachers' Day, we have a very special guest with us, and I'm sure it will be a very enlightening session. Before we start, I would like to thank Dr. Rajneesh Raj, State President, IMA MSN UP, Dr. Rahul Anand, General Secretary, IMA MSN UP, for taking this initiative. I would also like to thank Shashwat Singh, Harsh Srivastav, and Harshit Chauhan, without whom this event would not have been possible. Now it's time to introduce our guest for today. Please welcome the pharmacology guru, Dr. Gobind Rai Garg sir. As most of you might be aware, Dr. Gobind Rai sir is a renowned pharmacology faculty, an esteemed author, and a mentor for thousands of medical students, including me. Dr. Gobind Rai sir has done his MBBS and MD in pharmacology from University of Medical Sciences, University College of Medical Sciences, New Delhi. He is a passionate teacher, and for the love of teaching, he has taught and mentored thousands of students over the years for NEET PG and professional examinations. He has authored multiple best-selling books, including the go-to book for pharmacology, that is Review of Pharmacology. He has also developed an app, that is Pharmacology by Dr. Gobind Rai Garg, that helps thousands of UGs, FMGs, and PG aspirants to clear their concepts. Today, in the 7th episode of Stethify, we will be discussing with him about his journey so far, and sir will also be sharing with us his experience on NEET preparation strategies. We welcome you from the bottom of our heart, sir. Thank you so much for joining us. On behalf of each one present here today, we wish you a very happy Teachers' Day, sir. There couldn't have been a better day than today to have this session with you. Thanks a lot, Shashwat. Thanks a lot for having me in your discussion, and thanks a lot for this elaborate description of myself. I am privileged to talk to my students like this, and you have provided me that opportunity, and thank you very much. Yes, sir. So let's start the session, sir. Sure. So the first question that we have for you is, sir, please tell us कि आप as a medical student कैसे थे? As a medical student, मैं ज़्यादातर medical student की तरह ही था. In several terms, सबसे पहला तो जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्ज़ाम से एक महीना पहले ही पढ़ना है, बाकी सारा टाइम मस्ती करनी है. तो I was one of the, not being the topper, I was among the top 15-20 students in my college, in my class, and studies में serious था, but not all study and no play वाला नहीं था. I used to play cricket right from the beginning, and I used to participate in almost all types of events in my college also. Thank you, sir. The next question is, sir, आपको कब पता चला कि आपका teaching के towards interest है, that you want to become a full-time teacher? Actually, शाश्वत ये तो मुझे अभी तक भी नहीं पता है. Actually, teaching जो है by default मेरे genes में आ गई. Not in that term के मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं. मेरे पेरेंट्स दे आर इलिटरेट, आई मस्ट से. तो बेसिकली क्या था, जिस स्कूल में हम पढ़े थे अराउंड मतलब 1st से 10th तक, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसका नाम विकास पब्लिक स्कूल था. उसमें 10th क्लास तक मेरी क्लास में 10 बच्चे थे, इंक्लूडिंग मी, ठीक है. एंड एक ही टीचर था पूरे 1st से लेकर 10th क्लास तक. तो जो भी क्लास में ठीक ठाक स्टूडेंट होता था, उसी की जिम्मेदारी होती थी कि अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट सब बाकी बच्चों को पढ़ाने हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वहीं से पढ़ाने की आदत पड़ गई, ठीक है. और मैं इतना बढ़िया टीचर था कि 10th में मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही पास था, ठीक है. तो टीचिंग शुरू से ही मतलब शौक रहा है, बट जो एज अ प्रोफेशन टीचिंग मैंने चूज़ नहीं किया, टीचिंग ने मेरे को चूज़ किया. मैंने MD फार्माकोलॉजी जब उठाई तो ऑब्वियसली नॉट फॉर बीइंग अ टीचर. उस समय हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो
उस समय कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी नहीं थे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे मैक्स वैक्स अभी तो इतने सारे हैं, उस समय कोई भी नहीं था। उस समय 2 ही ऑप्शन होते थे कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो या फिर अपना हॉस्पिटल खोल लो। तो गवर्नमेंट जॉब तो कभी भी इजी नहीं थी शुरू। तो एक आसान तरीका मैंने डिवाइस किया, मैंने लोगों से बात की कि अगर आप एमडी फार्मा कर लेते हो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। अगर आप एमडी फार्मा कर लेते हो तो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल जाती है इजीली, 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू थी 50-60,000 पर मंथ। तो उस ल्यूक्रेटिव चीज़ को देखते हुए मैंने एमडी फार्मा उठाई फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट फर्स्ट जैसे हमने एमडी ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, ट्यूटोरियल्स लेने होते हैं, प्रैक्टिकल्स लेने होते हैं, कुछ कुछ लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो जब मैंने उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया तो 3 महीने के अंदर ही ये हालत हो गई कि ऑलमोस्ट हर कोई मेडिकल स्टूडेंट मेरे को ढूंढ रहा था और फिर मैं भी लोगों को ढूंढ रहा था कि पढ़ाऊँ किसको। तो विद इन 3 months मतलब आई वॉज क्वाइट पॉपुलर एज अ टीचर। तो उसके बाद से फिर सोचा गया कि टीचिंग में ही शायद बेटर रहेगा इंडस्ट्री में जाने से अच्छा। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं दिन बढ़ते गए मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा होता गया। और सेकेंड ईयर पीजी में हमने वो जो बुक की आप मेंशन कर रहे थे, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, वो हमने सेकेंड ईयर में लिखी थी जब मैं सेकेंड ईयर पीजी था। तो उसके बाद से जब बुक पॉपुलर हो गई 1-2 साल में, तो बुक पॉपुलर हो गई तो पैन इंडिया लोग जानने लग गए। तो उसके बाद तो फिर इंडस्ट्री का कभी ख्याल भी नहीं आया मन में, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग। तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ अपने आप होता चला गया, कुछ प्लान नहीं किया कभी। सर जैसा कि आपने कहा, टीचिंग को आपने नहीं बल्कि टीचिंग ने आपको चुना है, और वो चीज सर हमें भी दिखती है आपके पढ़ाने के अंदाज में। इसी के साथ सर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर आपने फार्माकोलॉजी ही क्यों चूज किया रेसिडेंसी, जैसा कि आपने बताया? तो वाज इट बाय चॉइस और बाय फेट? क्या आपका किसी टीचर का कोई रोल था इसमें? नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ इसमें सर्कमस्टांसेस का रोल था सबसे बड़ा। ठीक है, तो आपको शायद बैकग्राउंड मैंने आपको बताया नहीं कि शुरू से अराउंड बचपन से ही मतलब आई वाज बोर्न इन अ वेरी वेरी पुअर फैमिली। तो जब हम पुअर कहते हैं तो लिटरली मेरा मतलब पुअर का है कि हमें दिन में एक ही बार खाना मिलता था। जैसे फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में हम ओडी बोलते हैं उसको ना, वन से डे वाला। तो ऐसा सीन था कि हमें रेयरली कोई दिन होता था जिसमें हम 2 बार खाते थे, तो मोस्टली हमें एक ही बार मिलता था। तो हमने उस तरह के सर्कमस्टांसेस से निकले। स्कूल का मैंने बता ही दिया कैसा स्कूल था हमारा। तो उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा इम्प्रूव हुई नहीं क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो सब लोग मतलब मेरे पेरेंट्स थे जो बहुत मतलब मेरे फादर शायद 3rd पास हैं और मदर 2nd पास हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। तो ग्रेजुअली मतलब सिर्फ एक ही बात मुझे सब लोगों ने बताई कि इस गरीबी से निकलना है तो एक ही जरिया है, पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो हम शुरू से ही मतलब पढ़ने में थोड़ा सीरियस थे। तो जब 12th में पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद जब मेरा रैंक आया, आई गॉट 123 रैंक इन ऑल इंडिया पीएमटी। सीबीएसई का होता था उसमें एग्ज़ाम, सीबीएसई कहते थे हम इसको। तो उस समय मतलब बिना किसी कोचिंग के, उस समय कोचिंग बहुत होती थी। मतलब आई वाज बॉर्न इन बठिंडा पंजाब में, और बठिंडा वाज अ हब ऑफ कोचिंग। तो आई रिमेंबर कि 96 में जब मैंने पीएमटी दिया था उस समय बठिंडा में से 5 सिलेक्शन एम्स में हुए थे दिल्ली में, जबकि एम्स में टोटल 34 सीट्स होते थे उस समय। तो ऑल ओवर इंडिया में से 29 थे और सिर्फ बठिंडा से 5 थे। तो हमारे वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे उस समय, वहाँ पे उस समय आकाश का भी चलन नहीं था। उसमें इंडिविजुअल टीचर हुआ करते थे, मतलब फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, सबके अलग हुआ करते थे। तो 96 की बात कर रहा हूँ ये मैं, 96 में इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट का वो 25,000 चार्ज करते थे। तो दैट मीन्स अगर आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, तो 1 लाख रुपया चाहिए। और 96 का 1 लाख आज के 5 लाख के बराबर होगा मिनिमम। ठीक है, तो उस समय मतलब ऐसे हालात थे कि ऑब्वियसली कोचिंग का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो बिना कोचिंग के ही हमने स्टडी की। और आज भी मैं सबको कहता हूँ, जैसे सारे बच्चे कहते हैं कि कोचिंग के बिना तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कहता हूँ कि हम उस समय आने में भी बिना कोचिंग के करके आए हैं। तो आप कभी भी कर सकते हो, आपके मन में पढ़ने की लगन होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब हमारा रैंक आया, मेरा 123 रैंक आया, तो खुश होने की जगह हमारे घर पे और ज़्यादा दुख का माहौल हो गया, मातम की तरह छा गया
कि इतना बढ़िया रैंक आ गया, बच्चे को दिल्ली भेजना पड़ेगा और दिल्ली का खर्चा कौन अफोर्ड करेगा। तो बहुत ही सीरियसली मतलब रैंक जब मेरा आया, अंदर से मैं खुश था, बाहर से रो रहा था कि यार ये क्या हो गया, ना ही आता तो अच्छा था। तो बट बठिंडा में पर्टिकुलरली पंजाब में आज भी लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरी गली के सब लोग मेरे पेरेंट्स के पास आए कि बच्चे को पैसे के कारण पढ़ने से मत रोकना, घर में अकेला डॉक्टर बनने जा रहा है, हमारे मोहल्ले में अकेला डॉक्टर होगा ये, तो इसको रोकना मत, फाइनेंशियल हम हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो इसका कैरियर को खराब मत करना। तो वो किसी तरह से पेरेंट्स ने सब लोगों से मिलजुल के मेरे को दिल्ली भेज दिया। तो दिल्ली में ऑब्वियसली हमारे पास एक ही जरिया था कि हम आवारागर्दी तो कर ही नहीं सकते थे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो सीरियस थे, पढ़ाई में सीरियस थे, सारी एक्टिविटीज करते थे बट पढ़ाई के मामले में पर्टिकुलरली सीरियस थे। तो यही हालात हमारे इंटर्नशिप तक रहे। इंटर्नशिप में आई रिमेंबर कि मेरे को हमें 5,000 रुपया मिलता था इंटर्नशिप में जब मिलता था, और उस 5,000 रुपये में से मैं 1,500 रुपया अपना खर्चे के लिए रख के 3500 में घर पे भेजता था, और वो 1,500 रुपये में भी ऐसा लगता था कि मैं राजा बन गया, मतलब इतने ऐश से रहते थे। तो इंटर्नशिप के टाइम ही अब आगे एहसास हुआ कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो तब फिर जब हमने पता किया कि स्कोप क्या है आगे, किस ब्रांच का क्या स्कोप है, तो हमें पता लगा कि क्लिनिकल में किसी भी फील्ड में चले जाओ, दो ही स्कोप है, या तो गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ या फिर अपना हॉस्पिटल खोल लो। प्रॉब्लम यह है कि बठिंडा में जब मैं जाता था, रेलवे स्टेशन से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, तो जब मैं ट्रेन से उतरता था अपने घर जाता था, तो स्टार्टिंग में 96 में एक हॉस्पिटल था रास्ते में, ठीक है, बट जैसे जैसे हर महीने बाद मैं वापस आता था, कभी भी जाता था तो एक बढ़ जाता था। तो जब तक मैं इंटर्नशिप में आया हर गली के कोने में हॉस्पिटल था, ठीक है। तो कंपटीशन एक तो, और दूसरा ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वो थी नहीं कोई। तो इसलिए फिर मैंने, कुछ मेरे सीनियर्स फार्मा में थे तो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि अगर पैसा कमाना है जल्दी तो इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले, मतलब बेस्ट है कि इसमें श्योर शॉट जॉब मिल जाएगी 50,000 रुपये की आपको। तो कहाँ 5,000 से सीधा 50,000 सुन के तो जीभ से पानी निकल आया, ठीक है। तो फिर ये सोच के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फार्मा उठा लिया। ऑल्दो मैं हॉस्पिटल में वैसे बहुत पॉपुलर था, हमारे हॉस्टल में अराउंड 300 रूम थे, और हर एक रूम का बच्चा मेरे पास मेरे ख्याल से आया होगा, सीनियर भी जूनियर भी, कि भैया पढ़ने में तुम ठीक हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में फार्मा क्यों उठा रहे हो, पागल हो गए हो क्या। क्योंकि उस समय फार्मा कोई नहीं उठाता, आज तो फिर भी उठा लेते हैं आजकल, तो उस समय तो 2-2, 3-3 साल फार्मा की सीट खाली चली आती थी। तो बट मैंने अपना प्लानिंग मेरी क्लियर थी कि मुझे पैसा चाहिए, इस ज़िंदगी से निकलना है, तो मैंने फार्मा उठा लिया इस ये सोच के। बाकी फार्मा में हमारे डॉक्टर के शर्मा थे एचओडी, मैं आज भी टीचर्स डे पे सबसे पहले उनको ही मिल के आया हूँ अभी भी। तो ही वॉज माई मेंटर, और उनके जैसा बंदा दुनिया में कहीं नहीं, इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इन ऑन अर्थ। तो बस उनका तो रहा ही, वो तो फादर फिगर थे ही हमारे, और बाकी सिचुएशंस ने मुझे फार्माकोलॉजी दिलवा दी। सर दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी, और सर आपकी मेहनत आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं कि मतलब इंडिया में आपसे बड़ा कोई टीचर ही नहीं है फार्माकोलॉजी में। थैंक यू सो मच। और तो सर इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पर। क्या आपने कभी सोचा था सर कि यू वुड बी ऑथरिंग टेक्स्ट बुक्स इन योर पीजी डेज, या फिर इट वाज मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन? एक्चुअली इसमें भी एक स्टोरी है कि हम जब मैंने पीजी फार्माकोलॉजी ज्वाइन किया, तो फार्माकोलॉजी में बच्चों को पढ़ाना होता, मैंने आपको बताया। तो प्रॉब्लम ये थी कि एक महीने में 1 या 2 लेक्चर आते थे मुश्किल से, और बाकी सारा टाइम ऑलमोस्ट खाली होते थे, क्योंकि फार्मा में और कुछ था ही नहीं, रिसर्च थोड़ी बहुत करते थे अपनी, उसके अलावा खाली होते थे। तो 15 दिन के अंदर मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई कि मैंने ये क्या कर लिया, कुछ करने को ही नहीं है। तो फिर जैसे जैसे मुझे लैकुना पता लगा कि यहाँ बच्चों को कोई मतलब ठीक से चीज़ें समझ नहीं आती, और उनको मतलब केडी त्रिपाठी ठीक से समझ नहीं आ रही, मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी गैप फील हुआ कि बच्चे को कोई बुक चाहिए पढ़ने के लिए। तो फिर से हमने फर्स्ट ईयर में ही मैंने काम करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 चैप्टर मैंने लिखे, मैंने अपने एचओडी को दिखाए, उनको भी बड़े पसंद आए। तो फिर उससे एंथुजियाज्म हो गया, उससे मोटिवेशन मिल गया। तो फिर सेकंड ईयर में आते आते हमने वो बुक लिख दी। सर हम चलते हैं अपने नए अगले सवाल पर। सो यू आर रिगार्डेड एज द फार्माकोलॉजी गुरु। द पैशन फॉर टीचिंग लेड यू टू मेंटरिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस दौरान आपकी जर्नी कैसी रही?
जर्नी यार देखो, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, ठीक है। ऑल्दो मेहनत तो सब लोग करते हैं, ठीक है, बट मुझे जितना प्यार स्टूडेंट से मिला, मतलब वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब आई फील सो मच ब्लेस्ड कि मुझे सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। और मेहनत तो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है, बट हर एक को उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी मुझे मिली है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मैं स्टूडेंट्स के मन में अपनी जगह बना पाया हूँ, ठीक है। जर्नी ऑब्वियसली बहुत स्मूथ नहीं रही है, जर्नी इसमें भी बहुत डामाडोल बीच बीच में चली है हमारी। जैसे मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमएस से एमबीबीएस और एमडी किया। फिर वहाँ पे मैं सीनियर रेजिडेंट भी था 3 साल। उसके बाद क्या हुआ, यूसीएमएस में प्रोफेसर की पोस्ट निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं हम, लेक्चरर कह सकते हो आप। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली, उसमें 2 पोस्ट निकली थी और हम 3 लोगों ने अप्लाई किया था। 3 ऐसा थे हमने 3 लोगों ने अप्लाई किया था, 2 पोस्ट निकली थी। एंड आई वॉज वेरी वेरी फेमस एट दैट टाइम। मतलब बुक्स भी आती थी और सारे टीचर्स की नज़रों में मैं बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सिंसियर भी बहुत था। तो ये श्योर माना जा रहा था कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया, बाकी दोनों एसआर में से एक का होगा। तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें पता लगा कि मेरा ही नहीं हुआ, बाकी दोनों का हो गया। तो मतलब दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर मी। तो उससे बाद मैंने बात भी किया कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसमें पता लगा कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू हमारा एपी के लिए इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैं अराउंड 10 बुक्स लेके चला गया जो मेरी खुद की ऑथर थी। मेरे हाथ में ऐसे बुक्स में लेके गया था, तो आई थॉट के इम्प्रेस होंगे कि इतनी किताबें लिखी हैं बच्चे ने। तो बट वो उल्टा पड़ गया, उसमें कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो गई कि तुम अभी 22-25 साल के आदमी हो, तुमने अभी से लिख दिया, हम 50 साल के हो गए, हमने अभी तक नहीं लिखी। तो उस समय ऐसा लगा कि भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, बट मैं बताता हूँ, उस दिन से मैंने रियलाइज किया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे एपी शिप मिल गई होती तो आज मैं यूसीएमएस में असिस्टेंट प्रोफेसर ही होता या प्रोफेसर बन जाता मैक्सिमम। बट मैं जिंदगी में आगे राइज नहीं कर पाता क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चला गया था। पर जब मैं वहां से बाहर निकला, फिर मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज देखा, फिर मैंने बाहर की दुनिया देखी, तो उसके कारण मैं अपने आप को डेवलप कर पाया। तो आपकी लाइफ में कभी भी हार्डशिप आता है तो आप हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी मान के चलो कि ये आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आपको ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद मैं तकरीबन 3 महीने तक खाली था क्योंकि एसआरशिप खत्म हो गई थी, जॉब मिली नहीं। तो फिर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू आया एपी का, वहाँ पे एक ही सीट थी। वहाँ पे हम 2 कैंडिडेट थे, एक मैं था और एक मौलाना आज़ाद का इंटरनल था। तो अब ऑलमोस्ट 100% श्योर था कि उसी को मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसी आंखें बंद करके चला गया कि होना तो है नहीं, तो चलो इंटरव्यू दे देते हैं। तो इंटरव्यू वाले दिन बाई चांस क्या हुआ कि एग्जामिनर ने मेरे से धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जो मुझे आज की डेट में लगता है, बट बाई चांस मुझे सब आते थे। मैं आंसर करता गया। तो एंड में एग्जामिनर को बोलना पड़ा भैया कुछ ऐसा भी है जो नहीं आता। तो फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, एमसी में सिलेक्शन हो गया मेरा, इंटरनल को छोड़ के मुझे रख लिया गया। तो ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने 2 साल एमसी में एपी रहा मैं। फिर एमसी में भी वही सीन था कि नॉर्मल क्या होता है कि क्लासरूम जैसे होता है, वहाँ पे 180 स्टूडेंट थे उसमें एक क्लास में। तो नॉर्मली ज़्यादातर टीचर्स जब क्लास लेते थे तो लास्ट की 4-5 रोज खाली रहती थी क्योंकि प्रॉक्सीज लग जाती थी, वो खाली होता था पीछे वाला सीन। तो मैंने जब पहली क्लास ली तो उस समय भी यही सीन था कि लास्ट की 4 रोज खाली थी। पर जब मेरी सेकंड क्लास थी, सेकंड वाली क्लास थी एमसी में मेरी, उस समय सारा पूरा फुल था और आगे लोग नीचे बैठे हुए हैं। मतलब मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भैया नीचे क्यों बैठे हुए, सीटें तो फुल है 180। कहते सर सीनियर बैठे हुए हैं कुछ, वो कहते हमें भी अटेंड करनी है। तो उस दिन से मतलब ये एहसास हुआ कि बच्चा पढ़ना चाहता है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो उस समय हमने मतलब मेरी कोई भी क्लास में ऐसा नहीं मैं अटेंडेंस नहीं लेता था। मैं कहता था जो अटेंडेंस के लिए आया है वो चला जाए, मैं दे दूंगा, टाइम वेस्ट मत करो, अपना एंजॉय करो, ठीक है। जो सीखने आया है, जो पढ़ने आया वो बैठो। फिर भी मेरी कोई क्लास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें लोग नीचे ना बैठे। तो पूरी क्लास इस तरह से फुल रहती थी। तो फिर वही वाली बात एमसी में भी थी कि महीने में 2 महीने में 1 लेक्चर मिलता था, क्योंकि आप लगाओ कि फार्मा में टोटल अराउंड 100 लेक्चर्स होते हैं 100 आवर्स के, और पढ़ाने वाले अराउंड 12-13 लोग हैं वहाँ पे।
तो एक बंदे को मतलब साल भर में 7-8-10 लेक्चर मिलते थे, तो मंथ में मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर मिलते थे। तो मैं पढ़ाना चाहता था, स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते थे, बट आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने स्टूडेंट से ही वहाँ पे एमसी के बात की कि यार जहाँ पे तो देखो मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि सबको ही लेक्चर लेने होते हैं, तो ऐसा कर देता हूँ, अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो तो मैं एमसी से रिजाइन कर देता हूँ, मैं बाहर आपको पढ़ा दूंगा। तो बच्चे कहते हैं हम रेडी हैं, आज ही रेडी है। तो मैंने 31 जुलाई 2012 को रिजाइन किया और 2 अगस्त को मैंने बाहर अपना कोचिंग स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड डे रिजाइन करते ही एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दिया, एंड आई गॉट 95 स्टूडेंट्स फ्रॉम एमसी। तो 95 स्टूडेंट एमसी के आ गए, उनको बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट ईयर में आई गॉट अराउंड 300 प्लस स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल दी कॉलेजेस। एंड बिफोर कोविड, प्री कोविड, अभी तो कोविड के कारण नहीं हो पाया, इस साल आई वाज टीचिंग अराउंड 800 स्टूडेंट्स। सो आई हैव 2 बैचेस, ऑब्वियसली 2 बैचेस थे, बड़े बड़े बैचेस थे। तो स्टूडेंट्स का प्यार बहुत मिला, तो इसके लिए मैं भगवान का और सारे स्टूडेंट्स का तहे दिल से वो करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, दैट्स अ वंडरफुल जर्नी। और सर एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी इससे हमें मिलता है कि डेस्टिनी बिल्कुल फिक्स है सर। अगर उस दिन आपका सिलेक्शन हो गया रहता तो शायद मेरे जैसे जो 1000 स्टूडेंट्स हैं सर, उनका फिर बिल्कुल, आई फील लकी कि मेरा नहीं हुआ। even we feel lucky that आपका नहीं हुआ। The feeling is mutual. यस सर। तो सर अब चलते हैं नीट पीजी और नेक्स्ट के प्रिपरेशन पे डिस्कशन की तरफ। तो सर जो पहला सवाल है कि पीजी एंट्रेंस का सिलेबस काफी ज्यादा एनॉर्मस होता है और जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को रिमेम्बर करने में काफी मुश्किल आती है। तो सर इज देयर अ टैक्टिक्स, हम कैसे प्रॉपर और हाई यील्डिंग नोट्स बना सकते हैं जिससे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन इफेक्टिवली और जल्दी हो सके? देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पीजी एंट्रेंस के टाइम, जब आपको 19 सब्जेक्ट कवर करने हैं, उस समय ये नहीं आपको होता कि क्या क्या करना है, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या क्या नहीं करना है। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये नहीं करना है तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो शुरू से टॉपर हैं, जिन्होंने फर्स्ट प्रॉप में टॉप किया है, या पहले 2-3 में है, सेकंड प्रॉप में टॉप किया है, थर्ड में टॉप किया है, उनको पहले से बहुत आता है, ठीक है। तो उनको तो जितना भी कर लो उनको ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला या कोई भी एडवर्टाइज करता है तो वो टॉपर्स को ही करता है, और टॉपर्स एक अलग ही लीग होती है, आई नो दैट, ठीक है। वो अगर कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी टॉप करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट के साथ कि दे फॉलो द टॉपर्स, और वो हर एक चीज करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 19 सब्जेक्ट की हर एक चीज की याद कर लो, ठीक। तो हम क्या एडवाइस करते हैं कि जब तक आप प्रॉफ में हैं तब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ो ढंग से। फर्स्ट प्रॉफ में है तो फर्स्ट प्रॉफ की टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ो, सेकंड प्रॉफ में है तो सेकंड प्रॉफ की, तो जिस प्रॉफ में आप हैं उस प्रॉफ की टेक्स्ट बुक बहुत ढंग से पढ़ो। बट जैसे ही प्रॉफ खत्म हो गया, जैसे फर्स्ट प्रॉफ अगर आप पास हो गए, सेकंड में आ गए, उसके बाद कभी आप बीडी चौरसिया उठा के दिखा दो, आप नहीं उठा सकते, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, कितने बढ़िया पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आप बीडी चौरसिया बाद में नहीं पढ़ सकते अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो, ठीक है। ऐसे अगर सेकंड प्रॉफ पास हो गया, आप ईएनटी वाले प्रॉफ में चले गए, अब आप मुझे केडी त्रिपाठी को पढ़ के दिखा दो, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम होता है प्रॉफ के टाइम, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रॉफ आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए, चाहे आप उसको याद ना करो, बट वर्ड टू वर्ड पढ़ दो कहानी की तरह। इससे क्या होता है कि कई सारी चीजें सही में स्टोरी की फॉर्म में होती हैं और मन में छप जाती हैं। आपने एक रीडिंग दी और अराउंड 5%, 3% जितना भी है वो मन में छप जाता है एक बार, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करो। अब आता है सिलेक्टिविटी का पीजी एंट्रेंस के लिए, ठीक। तो आजकल ऑलमोस्ट हर चीज क्लिनिकल हो गई है। अगर आप रिसेंट एग्जाम्स देखोगे तो कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मा का नहीं आएगा। जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टीचिंग हमारे कॉलेजेस में हो रही है, वो काफी रिडंडेंट हो गई है, ठीक है। अब ये नहीं पूछते कि अल्फा ब्लॉकर के 4 यूज बताओ, अब ये पूछते हैं कि एक पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट किया, उसको ये हो गया, कौन सा अल्फा ब्लॉकर दोगे, ठीक है। तो आपको उसका सेंस समझ आना चाहिए कि जो भी चीज लिखी है कि वो क्लिनिकली कैसे यूज करोगे आप में वो एक्यूमेंट फर्स्ट प्रॉफ से डेवलप होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, और पेशेंट अगर आपके पास इस तरीके से आएगा तो आप इसको कैसे यूज करोगे कोई भी चीज को, ठीक है। तो वो आपको ज्यादातर, मतलब मैं जिनको बोलता हूँ, जैसे मैं तो अभी अपने लेक्चर्स मैंने रिलीज किए हुए हैं, उनमें सब में हमने इसी तरीके से बताया है
कि आपको बीमारी की तरीके से पढ़ना है, आपको दवाई के तरीके से नहीं पढ़ना। मतलब दो तरीके है ना, एक बीटा ब्लॉकर है, आप कह दो इस बीटा ब्लॉकर के 5 यूज कर लो, 5 साइड इफेक्ट याद कर लो, पास हो जाएगा एग्जाम, नोजिया वॉमिटिंग बोल देंगे, पास हो जाएगा, ठीक है। बट पीजी एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा उससे, ठीक है। आपको बीटा ब्लॉकर याद करने की जगह आपको पता होना चाहिए कि एंजाइना में क्या होता है, तो एंजाइना में क्या होता है, पेशेंट कैसे आता है, और वहां पे बीटा ब्लॉकर कैसे हेल्प करेंगे। अगर आपको ये चीज आ गई तो आपका कोई भी एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। तो द बेसिक थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप प्रॉफ में हो, आप प्रॉफ के अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट 10 साल के पेपर्स उठाओ, बुक में मार्क करो कि इन पे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लो एक बुक की रीडिंग देने के बाद। पीजी एंट्रेंस के लिए सेम चीज, आप 5 साल के पिछले पेपर्स उठाइए, नीट के, एम्स के पेपर उठाइए, उनमें जो जो टॉपिक पे क्वेश्चन है, नॉट क्वेश्चन, जो जो टॉपिक पे क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए और उनको बात भर पढ़ लीजिए। तो अगर आप कुल मिला के ये टॉपिक देखोगे ना, फार्मा में, पूरी फार्मा में मिला के हार्डली 100 टॉपिक होंगे, ठीक है। तो हमने एक रैपिड रिवीजन रिलीज किया है फार्मा में, ठीक है, उसको मैं T20 कहता हूँ। 6 घंटे में पूरी फार्मा खत्म है उसमें, 6 आवर्स। अगर आप वो 6 घंटे का वीडियो सुन लोगे तो आपके एग्जाम में 80% से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर आपने पहले पढ़ रखा ठीक ठाक आपको आता है। ठीक, तो बेसिक थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं कॉमनली, एंड हम अपने हर वीडियो में यही बोलते हैं कि कॉमन थिंग्स आर आस्क्ड कॉमनली। ठीक है, जो स्टूडेंट रेयर सिंड्रोम्स में चले जाते हैं, ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, उनको प्रॉब्लम होती है हमेशा, क्योंकि वो कॉमन चीजें नहीं पढ़ रहे। कॉमन पढ़ने के बाद आप कुछ भी कर लो, बट कॉमन इज द बेयर मिनिमम यू शुड डू। एंड वन मोर थिंग के किसी भी अपनी मेडिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपने 5 बार नहीं पढ़ी कोई चीज तो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। ये बेसिक रूल जो ध्यान रखता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप कम पढ़ लो, बहुत कम पढ़ लो, बट जो पढ़ा है वो तो आना चाहिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ा रखा है और आता कुछ ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप 100 चीजों को एक बार करने की जगह आप 10 चीजों को 10 बार करो, तो आपका रैंक हमेशा बेटर आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि आपने कहा कि टॉपर्स को फॉलो करना एक बहुत बड़ी गलती होती है, तो सर हम लोग एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो कितने आवर्स डेडिकेट करने चाहिए टुवर्ड्स नीट प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव अ गुड रैंक? ऑल्सो सर, नीट प्रिपरेशन क्या स्टूडेंट्स को अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को छोड़ना चाहिए? इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले आपने बोला कि टॉपर्स को फॉलो करके आप गलती करें, नहीं, टॉपर्स को फॉलो करके आप गलती नहीं कर रहे हैं। आप इससे आप, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर नहीं बन सकता, हर कोई टॉपर बन सकता है। आप स्कूल में अपने स्कूल के टॉपर्स होंगे मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, तो कोई भी टॉपर बन सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पिछले 3 साल में कितनी पढ़ाई करी है, उस पर बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपने पहले 4 साल पढ़ाई नहीं की और 2 महीने में मैं टॉपर बन जाऊंगा, वो नहीं होगा। ठीक है, आप टॉपर बन सकते हो, आप शुरू से पढ़ाई करो, ठीक, और प्लस टॉपर के लेवल पे जाने के लिए बेसिक क्लियर करके फिर जाओ आगे। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप टॉपर का सपना मत देखो, सपना हमेशा ऊंचा ही देखना चाहिए, ठीक, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले अपने लेवल को सिक्योर करो। मान लो आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि आप 2000 रैंक ले आओगे, ठीक है, तो पहले 2000 को तो सिक्योर करो, फिर आप जाओगे 1000 लाएंगे, फिर आप जाओगे 500 लाएंगे, ठीक है। बट अगर पहले ही आप सोचोगे कि मैं रैंक 1 लाऊंगा, तो आपका वो 2000 रैंक भी 20000 पे चला जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आपको पहले आता है उसको कंसोलिडेट करो, फिर उस पर बिल्ड ऑन करो। तो दैट इज द मैसेज कि आप ये मत सोचो कि मैं ये कह रहा हूं कि आप टॉपर नहीं हो, हर कोई टॉपर है, बट आपको अपने लेवल को मजबूत करके फिर आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक, हर एक स्टूडेंट के लिए ये अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप 6 से 8 घंटे, 6 to 8 क्वालिटी आवर्स का मेरा मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय आपका मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं देखना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ने बैठते हो, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो, साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, जो भी आपका स्टेमिना है। पढ़ने के बाद उसके बाद मोबाइल को ऑन करो, जो मर्जी करो उसमें, ठीक, आधा घंटा पौना घंटा उस पर वेस्ट करो, जो मर्जी करो। उसके बाद फिर स्विच ऑफ करके फिर पढ़ने बैठो। ठीक, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमने साइलेंट तो कर रखा, फर्क क्या पड़ता है, बट जैसे ही साइलेंट करा उसमें लाइट फ्लैश हुई, आपने देखा कि मैसेज है, चलो देख के रख दिया, बट जो आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ ना, वो आपका 1 घंटा 35 मिनट के बराबर रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए।
अगर ऐसे आप 6 घंटे दे सकते हो इंटर्नशिप में, 6 hours a day for 6 to 8 months, that is enough to clear any entrance exam. ठीक, अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर से, तो अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हो ऑन एन एवरेज रोज के 2 घंटे पढ़ते हो, 2 hours, just 2 hours फर्स्ट ईयर से अगर स्टार्ट कर दिया, अगर आपने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया तो 3 hours, थर्ड ईयर से किया तो 4 hours, फाइनल ईयर में किया तो 5 hours, इंटर्नशिप में तो 6 hours, सिंपली 1-1 घंटा पढ़ाते जाओ। ठीक, तो उससे आपका बड़े आराम से एंट्रेंस क्लियर हो जाए। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था आपका कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। आई स्ट्रांगली डिस्करेज कि आप सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ। एमबीबीएस में आप आ गए, जिंदगी में पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, ये मैं बता देता हूँ। अगर आपको अभी लगता है, जैसे लोग कहते थे कि बस पीएमटी क्लियर कर ले फिर तो ऐश ही ऐश है, आज दे रहे हो ना गाली उनको, ठीक है, ऐसे कल कहेंगे कि बस पीजी एंट्रेंस क्लियर कर लो फिर ऐश ही ऐश है, फिर गाली दोगे आगे जाके। ठीक, तो एमबीबीएस में आप आ गए तो आप पढ़ाई का कभी अंत नहीं होगा, ये हमेशा चलेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट ये आपका प्राइम टाइम है, यूथ हो आप, इस समय अगर आपने अपने दिल के अरमान पूरे नहीं किए तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उनके लिए टाइम रखना ही रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी शौक है, जैसे मेरा शौक क्रिकेट खेलना है, ठीक है, मैं जब इंडस्ट्री में आया तो सैटरडे हमारे संडे को मैचेस होते हैं, संडे को मैच होते हैं। जब मैं टीचिंग में आया तो टीचिंग में संडे की ही क्लासेस होती थी, क्योंकि कभी भी भाटिया वाले डैम्स वाले भेज देते थे कि यहाँ जाके क्लास लो। मैंने कभी संडे की क्लास नहीं ली अनलेस कि मेरा मैच ना हो। मैं कहता था मैं पैसा कम कमा लूंगा बट मैं अपना शौक नहीं छोड़ूंगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप में कोई पैशन है तो आप बहुत लकी हो, और उस पैशन को छोड़ो मत बिल्कुल भी। टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप टाइम निकालोगे पैशन के लिए भी निकलेगा, पढ़ाई को बिना सफर के ही होगी। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नहीं छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आप छोड़ोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसा आपने कहा कि टाइम निकालना पड़ता है, तो उसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए एमबीबीएस के दौरान, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और नीट की प्रिपरेशन साथ में एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं? इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जैसे अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो आप पहले तो 10 ईयर उठाओ यूनिवर्सिटी के, उनको मार्क कर लो बुक में। ठीक है, और प्लस आप साथ में नीट वाले क्वेश्चंस उठाओ, नीट या एम्स जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, और उनके टॉपिक लिख लो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस एक बार करके आपको एग्जाम से एक महीना पहले करने हैं वो बस। ठीक है, बाकी टाइम आप एमसीक्यूज के हिसाब से तैयारी करते हो। तो एमसीक्यू जब आप करते हो ना, बेसिकली एमसीक्यूज में क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। अगर आप बुक को वैसे पढ़ोगे आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, बट वही बुक के जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो समझ आएगा कि ये क्यों लिखा हुआ था। तो एमसीक्यू करने से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, तो एमसीक्यू आपको साथ साथ करने की आदत होनी चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट भी बेटर होंगे, और साथ में जो जो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटीज में आते हैं वो तो साथ में ढंग से करना ही है आप। ठीक है, ये तो बस सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर फर्स्ट ईयर से आप रेगुलरली पढ़े हो तो 2 घंटे, सेकंड ईयर से 3 घंटे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आपको 6 घंटे भी एक दिन में निकालने हैं तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं तो 2-3 घंटे कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंस के साथ काम करोगे ना तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इंटर्नशिप स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, और स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स नीट प्रिपरेशन, और पोस्टिंग्स के दौरान वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। मैंने फाइनल ईयर में, जब मैं फाइनल ईयर पास हुआ, इंटर्नशिप में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इंटर्नशिप में नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। मैं इंटर्नशिप को सीरियसली करूंगा, ठीक, पेशेंट की केयर करूंगा, सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप इतना बिजी होता है, इतना हेक्टिक होता है कि दोनों चीजें मैनेज करूंगा तो कुछ भी ढंग से नहीं होगा कि मैं पीजी एंट्रेंस की तैयारी भी करूं और साथ में पेशेंट केयर भी करूं, तो दोनों ही एक दूसरे को मैच नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये सोच के मैंने सोचा कि इंटर्नशिप में मैं किताब नहीं उठाऊंगा। ठीक, तो 15 दिन मेरी पहली पोस्टिंग सर्जरी की थी, और दिल्ली में आपको सबको पता है कि दिल्ली में सबसे हेक्टिक इंटर्नशिप होती है। ठीक, तो 15 दिन मेरे सर्जरी में मैंने निकाले,
तो 60th डे मैंने बोर होके किताब उठा ली, इतना टाइम था। जो लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप में आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वो झूठ बोलते हैं अपने आप से। मैं बताता हूँ, आपकी नॉर्मली ड्यूटी होती है 6 घंटे 8 घंटे। ठीक, आपकी सवेरे 9 बजे से ड्यूटी है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे छूट जाओगे मैक्सिमम। ठीक, उसके बाद से शाम के 7 बजे से लेके सवेरे तक आप खाली हो, 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हो आराम से। ठीक, फिर आपकी 24 आवर ड्यूटी आई, जिस दिन 24 आवर ड्यूटी होती है आपकी, उससे अगले दिन आपको ऑफ मिलता है, पॉजिटिव ऑफ मिलता है, पूरे 24 घंटे खाली है। ठीक, तो इंटर्नशिप में जो ये कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। पहली बात, कितनी भी हेक्टिक इंटर्नशिप हो, आप ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 15 घंटे निकाल सकते हो बहुत आराम से, बहुत आराम से। ठीक, दूसरी बात, इंटर्नशिप में जो भी कुछ कर रहे हो उस समय आपको स्टडीज में बीच में मत लाओ। जैसे इंटर्नशिप में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, उसमें ड्यूटी करो सीरियसली। आजकल जो ड्यूटी सीरियसली कर रहे हैं उनका एंट्रेंस क्लियर करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली एम्स में और आजकल तो नीट में भी हो गया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट। जैसे इंटर्नशिप में आप देखते हो पेशेंट एमआई का आया, कैसे आया और सर ने क्या किया इमीडिएटली, तो वही क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि पेशेंट ऐसे ऐसे करके आया, आप क्या करोगे। अगर आपने वो सीरियसली नहीं देखा तो आप किताबों से पढ़ के आंसर नहीं कर सकते ऐसी चीजें। तो जब भी पोस्टिंग आपकी कोई है, उस पोस्टिंग को सीरियसली लो, जो प्रोसीजर्स कॉमनली होते हैं वो ध्यान से देखो, जो एहसास करते हैं इमरजेंसीज में कॉमनली वो देखो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं उनको देखो। ठीक है, तो यही चीजें क्वेश्चन बन के आती है। तो जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो सीरियसली इंटर्नशिप करो, और जब इंटर्नशिप नहीं कर रहे, दैट मींस जब आप हॉस्टल में हो, घर पे हो, उस समय पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। इंटर्नशिप में गोल्डन रूल ये है कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, कि आपने 3 घंटे दोस्तों से गप्पे मारने में वेस्ट कर दिए, दैट इज बिग नो इन इंटर्नशिप, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। बाकी पढ़ने का और काम करने का टाइम एनफ है दोनों के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए एनफ टाइम है। अगर कोई भी इंटर्न मेरे को आके कह दे कि ये नहीं कर सकते तो वो झूठ बोल रहा है। The next question is, sir, काफी स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो नाउ दैट हाफ ऑफ द ईयर इज ओवर, तो फोकस को कैसे बनाए रख सकते हैं अभी? देखो, ये कोविड डेफिनेटली ये अनएक्सपेक्टेड था और सबके लिए मुश्किल है। बट ये है कि जब मुश्किल टाइम आता है तभी हीरा निकल के सामने आता है। तो ये है कि इस समय आपको पॉजिटिव रहना सबसे जरूरी है। बहुत सारे लोगों की कोविड में ड्यूटीज लग रही, जिनकी नहीं भी लग रही उनको घर पे डर है कि पेरेंट्स को ना हो जाए, इसको ना हो जाए, और कई लोगों के हो भी चुका है फैमिलीज में। ठीक है, तो विद ऑल प्रिकॉशंस, ऑब्वियसली प्रिकॉशंस तो हमें लेनी ही लेनी है सारी। ठीक है, बट हमें प्रिकॉशंस के साथ साथ अपनी जिंदगी भी चलानी है। अगर आप इंटर्नशिप मतलब पीजी की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही साथ में। ठीक है, तो इसमें आपको खुद से डिटर्मिनेशन लानी पड़ेगी कि क्या आप 1 साल और लगाना चाहते हो या आप इसी साल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जब भी आपके मन में ये आए ना, यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इमीडिएटली ये सोचो कि यार अभी 6 महीने पढ़ने हैं, फिर 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप मन करेगा यार नहीं 1.5 साल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमको अंदर से ही मोटिवेशन लानी पड़ेगी। और इसमें जब भी आपको लगता है कि आप डीप फोकस हो रहे हो, तो अपना स्टडी पीरियड को रिड्यूस कर दो। अगर आप 2 घंटे पढ़ना चाहते हो, 2 की जगह आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ के 20 मिनट ब्रेक, फिर आधा घंटा पढ़ लो। ठीक है, तो जब आप छोटे छोटे सेशन रखते हो ना, तो पढ़ने की मोटिवेशन बनी रहती है। जब लंबे सेशन रखोगे तो वो मोटिवेशन ला पाना मुश्किल होता है। अभी 2 घंटे तो पढ़ लिए, और जब दूसरे 2 घंटे वाला सेशन आएगा ना, तो पहले से ही लगने लग जाएगा यार 2 घंटे कौन पढ़ेगा, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे सेशन में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। बट ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से आना चाहिए कि पढ़ना है। अगर अंदर से नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल। थैंक यू सर। सर अब चलते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ। सर आपने फार्माकोलॉजी को इतना इजी बना दिया है, प्लीज हमें बताएं कि व्हाट्स द करेक्ट वे टू स्टडी फार्माकोलॉजी, एंड सर प्लीज आल्सो ब्रीफ अस अबाउट योर एप्लीकेशन। थैंक यू। देखो, फार्माकोलॉजी का जब मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था 2003 में, जब मैंने पीजी ज्वाइन किया था, उस समय जो मैं पढ़ाता था और आज की डेट में जो मैं पढ़ाता हूँ वो मतलब ग्रॉसली डिफरेंट है। ऑल्दो 2003 में भी मैं बहुत फेमस था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, मतलब लोग कहते हैं जो। ठीक है, बट मैं आई कैन फील कि आज जो मैं पढ़ाता हूँ वो उससे मच मच बेटर है। उसका एक रीजन सिंपल ये रहा, मेरी में जो जर्नी थी उसमें ये रहा कि मैंने एक रूल बना लिया था कि मेरी क्लास में जो क्वेरीज आती हैं, क्लास जो क्वेरीज आती हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास में वो नहीं होनी चाहिए। मैं सेम टॉपिक पे जब दोबारा पढ़ाता था
तो वो जो भी क्वेरीज मेरे पास आई वो सारी लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर देता था, ठीक है, लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन पूछ लेता था बच्चे। जो क्वेश्चन बच्चे ने मेरे से पूछा अगले साल में अगले लेक्चर में मैं पहले ही पूछ लेता था बच्चों को, ये बताओ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो ग्रेजुअली हर एक लेक्चर में एक दो पॉइंट ऐड होते गए, ठीक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स वो ग्रॉसली चेंज हो गए, क्योंकि अब मेरी क्लास में कोई भी बच्चा बैठता है, उसके जैसे ही मन में कोई क्वेश्चन आता है मैं पहले ही अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उससे कि ये बता, तो उसको लगता है यार मेरे मन की बात तो बता दी, ठीक है। तो टीचिंग जो होता है वो दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसे अब जो लर्निंग की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि अब हर कुछ क्लिनिकल होता जा रहा है, तो आप अब स्टैट रेक्टोफाई करके कुछ नहीं कर सकते कि आपने केडी त्रिपाठी का चैप्टर खोला, सीवीएस का चैप्टर खोला, हाइपरटेंशन खोला कि हाइपरटेंशन में अल्फा ब्लॉक कर देते हैं, हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉक कर देते हैं, थायराइड देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं, इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आया, उसको क्या प्रॉब्लम है, बीपी ज्यादा क्यों है, क्या मैकेनिज्म है बीपी ज्यादा होने के, उसको बीपी को कम कैसे करोगे आप, ठीक है। और पेशेंट आएगा इतना बीपी है तो क्या दोगे, इतना है तो क्या दोगे, इस तरीके से आपको क्लिनिकल ओरिएंटेड आना चाहिए। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं पर्टिकुलरली ज्यादातर लोग जो रेफर करते हैं केडी त्रिपाठी को, उसमें ये एड्रेस नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि वो प्रॉफ पास करने के लिए तो अच्छा है बट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसी कमी को देखते हुए हमने पहले तो अपनी रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बुक लिखी थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग टेक सेवी हुए तो हम भी हो गए, तो हमने एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन निकाल दिया। तो मोबाइल एप्लीकेशन में जो हमारे वीडियोस हैं वो क्लिनिकल सेंस में, अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे तो सबसे पहले बीमारी के बारे में बताया जाता है कि CHF है क्यों होता है, बेसिक पैथोजेनेसिस क्या है, फिर उसके बाद हम किस किस चीज को टारगेट करके ठीक कर सकते हैं, और फिर उसका पेशेंट आएगा तो कैसे देंगे, क्या दवाई देंगे, क्या नहीं देंगे। तो क्लिनिकल तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप पहले वीडियो देख लो, वीडियो देख के आपको ग्रॉसली समझ आ जाएगा कि बीमारी में क्या हो रहा है, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कोई भी लेक्चर 100% बुक को कवर नहीं कर सकता, तो आफ्टर लिसनिंग टू द वीडियो लेक्चर्स आई विल एडवाइस टू रीड द टेक्स्ट बुक। अगर आप सेकंड प्रॉब में हो तो, अगर आप पास कर चुके हो फिर टेक्स्ट बुक मत खोलना, खोल भी नहीं पाओगे, खोलनी भी नहीं, ठीक है। तो वीडियोस देखो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक से वही चीज पढ़ो, फिर आपको टेक्स्ट बुक की एक एक चीज समझ आने लग जाएगी कि ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, रटोगे नहीं आप, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक अपने एक रीडिंग पढ़ ली, उसके बाद आपने मार्क कर रखा है कि ये यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस को याद करना है आपको, रीडिंग देनी है, फिर याद उनको करना है जो यूनिवर्सिटी में आ चुके थे। उसके बाद फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको बुक में ही या नोट्स में जैसे भी आपका मन करता है क्यों लिखते जाओ कि ये क्यों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता होगा इन पे क्वेश्चन आते हैं। The next question is, many students from private institution tend to get demotivated and disheartened because उन्हें लगता है कि पीजी एंट्रेंस में अच्छी रैंक लाना is not their cup of tea। तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत कॉमनली आता है, तो इसमें सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि इसी साल की बात है, लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट था, वही उसका मैसेज आया कि मैं तो प्राइवेट कॉलेज से हूँ, ठीक है, मेरा तो दिमाग भी कम है सबसे, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है, मैंने 5 साल पढ़ाई भी नहीं की ठीक से, और मेरा पिछले साल नीट में रैंक आया है 1,03,000, ठीक है, तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं इस बार, अगले साल भी नहीं मिलेगा, मैं तो साल खराब करूँगा, ठीक है। तो मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली थी, मैंने कहा भाई देखो, दिमाग की कम होना या ज्यादा होना आपके हाथ में नहीं है, जितना भी आपका दिमाग है उतना है, ठीक है, किसी का ज्यादा है या कम है उसको तो चेंज कर नहीं सकते हम, बट इस गैप को आप कम कर सकते हो अपनी मेहनत से और फोकस से। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आई विल अश्योर कि जिसका तेज दिमाग है अगर वो उतना सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो आप उसके और करीब आते जाओगे। अगर दोनों अपने दिमाग, बेसिकली बात यह है कि आपको अपने आप को उस तरीके से करना है फोकस कि आप हाई यील्ड चीजें करो, ठीक है, और फोकस के साथ करो, डेडिकेशन के साथ करो। तो उसने ये बात समझ ली, ठीक है, और इस साल उसका रैंक आया, पिछले साल वो था 1,03,000, इस साल उसका रैंक आया 2700 समथिंग, ठीक। ये तो 1 लाख से 3,000 का सफर है। ऐसे ही एक और स्टूडेंट था प्राइवेट कॉलेज का ही, उसका रैंक इसमें 62,000 था पिछली बार, इस बार उसका रैंक आया 200 कुछ, ठीक। तो आई हैव लाइव एग्जांपल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये कहते थे कि हम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कुछ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आपका एटीट्यूड तय करता है। अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है तो वो हो जाएगा, बट अगर आप मन में ही डाउटफुल हो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप लिख के ले लो, कभी नहीं होगा जिंदगी।
कभी नहीं होगा। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हर एक हर्डल पास हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा एक कजन था 11th-12th की तक, छोटे जब हम थे, तो उस कजन को सब लोगों ने बाहर कर दिया था कि मतलब उसने भी मेडिकल लिया था हमारे साथ, तो उस जो चीज हम नॉर्मली आधे घंटे में याद कर लेते थे, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, उसको 8 घंटे लगते थे, और उसमें भी वो आधी सी याद कर पाता था, ठीक से याद नहीं कर पाता था। तो हर एक बंदे ने उसको आउट कर दिया था कि ये तो मतलब पास भी नहीं होगा शायद 11th-12th में। बट उस बंदे ने क्या किया, उसने 18 घंटे डेली पढ़ाई की। 18 घंटे, मैं लाइव एग्जांपल हूं, मैंने उसको देखता था, मेरे घर के सामने रहता था। 18 घंटे रोज, मतलब वो सिर्फ नहाता धोता था, खाना खाता था, पढ़ता था, तीसरा कुछ नहीं करता था। ठीक, वो आज की डेट में एमएलए करके अमेरिका में बैठा है। ठीक, लाइव एग्जांपल है जिसको सबने कर दिया था कि ये तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो हार्ड वर्क जो है ना, वो किसी भी चीज को ओवरकम कर सकता है, फोकस्ड हार्ड वर्क। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं कर नहीं सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया आप कर नहीं सकता, उस दिन आप रेस हार गए, हार गए रेस। ठीक, बस अगर आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूं, तो कोई ना कोई तरीका निकल आएगा कि आप कर पाओगे चीज। दैट इज द मैसेज, कि कोई भी ये मत सोचिए कि, बल्कि आप में तो और ज्यादा जोश होना चाहिए ना कि यार पीएमटी के टाइम में हम गवर्नमेंट में नहीं आ पाए, अब लाके दिखाते हैं। तो पक्का हो जाएगा अगर आप कोशिश करो, कोशिश ही सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है सर, हमें काफी जगह से ये क्वेश्चन मिला था, और पर्सनली मैं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हूँ, तो कभी कभी मेरे में भी एक ख्याल नहीं, आता है। बिल्कुल, मेरे पास भी कॉमनली ये क्वेश्चन आता है, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि सिर्फ एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया तो आप कर पाओगे, बट अगर आप सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलते हैं सर आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यू हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। एज अ फैकल्टी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। एज अ फैकल्टी, जब भी कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हमारे पास दोनों एक्सट्रीम्स होती हैं। एक वो लोग जो टॉपर्स हैं, जिनका बड़ा अच्छा रैंक आया है, वो आके बहुत खुश होते हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है। एक वो स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास के जिन्होंने बहुत मेहनत की बट उनको डिजायर्ड रैंक नहीं आया है। ठीक है? तो हम एक ही टाइम पे दो दो फीलिंग से निकलते हैं। हम खुश भी हैं और हमारे मन में अफसोस भी है कि ये बेचारा बच्चा इतनी मेहनत की, इसमें रह गया। ठीक है? तो ये टीचर में कॉमनली रहता ही है कि हम हमेशा कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी उदास नहीं हो सकते। ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, हार्ड वर्क करना है, बट वो फोकस्ड होना चाहिए। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज को याद करने की कोशिश करो। ठीक है, आप जो भी चीजें पढ़नी है, आपको आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, ये आपको सही पता लग गया, तो आधी तो रेस जीत ली आपने। क्योंकि 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, क्योंकि वो सोचते हैं, जैसे हम कॉमनली आजकल आपने सुना होगा, दो ऐप्स आती हैं, प्रेपलेटर, एक मैरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है कि जो कहते हैं ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिसके पास प्रेपलेटर है उसको लगता है पता नहीं मैरो में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जिसके पास मैरो उसको लगता है पता नहीं प्रेपलेटर में क्या क्या पढ़ा दिया। तो बच्चे दोनों ले लेते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी रेसिपी है फेल होने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कंटेंट आपके पास है, कोई भी कंटेंट खराब नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। जो टीचर पढ़ाता है अच्छा पढ़ाता है, कोई भी मतलब खराब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी जगह से आप पढ़ रहे हो, जो भी सोर्स से पढ़ रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज याद कर सकते हो, तो उसी सोर्स को पढ़ो। आप बार बार 10 चीजें मत देखो। ये एग्जाम में क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। 90% से ज्यादा स्टूडेंट जब एग्जाम के हॉल से बाहर आते हैं, उनका क्या कहना होता है, उनका कहना होता है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सुने हुए थे बट आता कोई नहीं था। उसका सिंपल रीजन क्या होता है कि उन्होंने इतना ज्यादा कुछ पढ़ रखा होता है कि उसके याद कुछ नहीं होता, सब कुछ सुना सुना लगता है। ठीक है, बट ये सुना सुना लगने से एग्जाम थोड़ी क्लियर होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपके 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी आपने सुने ही ना हो एग्जाम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो 200 क्वेश्चन आपने सुने हैं, उसमें से 150 सही होने चाहिए। अगर आप ये कर पाओगे तो आपका रैंक अच्छा आएगा ही आएगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, कम पढ़ो, सिलेक्टिव पढ़ो, बट जो पढ़ा है वो इतनी बार पढ़ो कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो। बस पॉजिटिव एटीट्यूड, फोकस्ड स्टडी एंड परसिस्टेंस, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अगर लगे रहोगे तो रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच सर।
We will now take some audience questions if there are any. I'll read out the question to you. Sir, what shall be the what study hours for PG entrance should it include reading from prof books or from videos or solving questions? So I told already, if you have already passed one prof, like you have passed second prof, you are in third prof, then do not try to touch the textbooks of first or second prof. Whichever prof has already been cleared, उसके टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है यार, उनके टेक्स्ट बुक को रेफरेंस के लिए रखना. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो देखना है. ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो बेस्ट है, मैं आपको ये बताता हूँ कि वीडियो देख के कॉन्सेप्ट बनाओ. उसके बाद आप नोट्स, मतलब अगर आप प्रॉफ में तो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक पढ़नी है, प्रॉफ पास होगा तो बता रहा हूँ. तो उसके बाद आप वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ. उसके बाद या तो नोट्स अपने खुद बना लो या बने बनाए नोट्स ले लो. बट डायरेक्टली बने बनाए नोट्स विदाउट वीडियोज आर यूजलेस, कोई फायदा नहीं उनका. ठीक है, कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको. उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो और एमसीक्यू में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है उन्हीं नोट्स में ऐड कर लो. सो दैट इज द थिंग विच. So one more very common question is, what is the best time to start preparation for next, second year or third year? There is no best time. Best time is, मतलब कहते हैं कि ना, जब जागो तभी सवेरा. ठीक, तो आप कभी भी हो, नेक्स्ट के लिए तैयारी नहीं करनी है आपको. आपको अच्छा डॉक्टर बनने की तैयारी करनी है. अगर आप अच्छा डॉक्टर बनने की तैयारी करोगे तो दुनिया के सारे एग्जाम क्लियर होंगे. ठीक है, तो आप अगर अभी से ये लोगों के नेक्स्ट में मेडिसिन आएगा तो मेडिसिन फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दूं, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. गवर्नमेंट ने जो प्रॉफ सिस्टम बनाए हैं कुछ सोच के बनाए होंगे. अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती तो सर्जरी क्या समझ आएगी आपको. ठीक है, अगर आपको पैथोलॉजी नहीं आती तो आप मेडिसिन में क्या कर लोगे. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ है, दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स. क्योंकि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट तभी समझ आएंगे अगर आपको ये आते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि अब तो नेक्स्ट में तो सिर्फ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट आएंगे, तो फर्स्ट सेकंड प्रॉफ तो बेकार है. ठीक है, आपको अगर पता हो, एक यूपीएससी अपना कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम कराती है, आपने सुना होगा. उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं सिर्फ क्लिनिकल. कहते हैं कि मेडिसिन आएगी, सर्जरी आएगी, ऑब्स्टाइन आएगी, पीड्स आएगी और ऑर्थो आएगी, मतलब ऑन क्लिनिकल क्लियरली लिखा हुआ उन्होंने. बट यू नो कि हर साल यूपीएससी के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं एक पार्ट में. उस 150 में से कम 25 क्वेश्चन फार्मा के होते हैं. 25. और अगर आपने फार्मा नहीं पढ़ी हुई, आपने कितनी भी अच्छी मेडिसिन सर्जरी पढ़ी है, वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते आप. ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने बेसिक सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया तो चाहे नेक्स्ट एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, आप अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते. नॉट ओनली एग्जाम क्लियर में, वो तो एक छोटी बात है, आप अच्छे डॉक्टर कैसे बनोगे अगर आपको ठीक से चीज ही नहीं आती. तो यू हैव टू ट्रीट विद द लाइफ. अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कैसे करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब स्टूडेंट कहते हैं कि नेक्स्ट की तैयारी कैसे करूं, वो बहुत गलत फहमी में है. अगर आप अपने प्रॉफ ढंग से करते जाओगे, हर एक एग्जाम की तैयारी अपने आप हो गई. ठीक, तो नेक्स्ट हो, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे एमएलए हो, द बेसिक इंग्रेडिएंट इज, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि कर क्या रहे हो आप, कॉन्सेप्ट क्या है. सीएचएफ होता है तो क्या होता है, क्यों होता है, उसको ठीक कैसे करोगे. अगर आपको ये आती है तो कोई भी एग्जाम हो सब एक बात. बिल्कुल, थैंक यू सर. एक और सवाल है सर कि 2017 बैच शायद से पहला बैच होने वाला है नेक्स्ट में अपीयर होने के लिए, तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स. मैंने अभी भी आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट श्योर कि 2017 बैच वालों के नेक्स्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ पोस्टपोन होता जा रहा है. नेक्स्ट के लिए जो मीटिंग्स होनी थी गवर्नमेंट की, वो भी स्टार्ट भी नहीं हुई है. तो आई एक्सपेक्ट के नेक्स्ट एक साल और पोस्टपोन कर देंगे. बट बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप कुछ कह नहीं सकते, ओवरनाइट फैसला कर सकते हैं कुछ भी. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेंशन नहीं लो यार, नेक्स्ट भी तो एग्जाम ही है ना. अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है तो आप नाम उसका एग्जाम का नीट रख दो, नेक्स्ट रख दो, या कुछ भी रख दो, लड्डू रख दो, क्या फर्क पड़ता है. सिर्फ एग्जाम का नाम चेंज हुआ है, चीज वही है. अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने से रोक नहीं सकता.
So the next question is, sir, I am a second year student, but I missed out on many topics and concepts of first year. So how to cover that up? That's very good question. So what I tell the students कि अगर आपने फर्स्ट प्रॉफ पास कर लिया, सेकंड प्रॉफ में आ गए और अब आपने सोचा कि यार सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉफ ने आपने सीरियसली किया नहीं अभी तक, तो इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जिस प्रॉफ में हो सबसे पहले उसको सॉलिड बनाओ. आप सेकंड प्रॉफ में हो तो सेकंड प्रॉफ के चारों सब्जेक्ट्स फार्मा, पैथ, माइक्रो, फॉरेंसिक, इनको ढंग से करो. ढंग से करने का मतलब ये है कि पहले इनके वीडियो सुनो, फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ो, फिर एमसीक्यू करो. ठीक है, जब ये चारों सब्जेक्ट हो जाएं, जब ग्रॉसली मेजरली हो जाएं, तब आप क्या करो, फर्स्ट प्रॉफ का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो. पर्टिकुलरली एनाटॉमी में एडवाइस करूंगा कि इस साल में आप एनाटॉमी कर दो. तो सेकंड ईयर में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड ईयर में सेकंड के चारों प्लस एनाटॉमी, अगर आप इतना कर दोगे तो आपका काफी हद तक मोटिव अचीव होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉफ में आओगे ईएनटी ऑप्था वाले. ईएनटी ऑप्था वाले में 3 ही सब्जेक्ट हैं, ईएनटी ऑप्था पीएसए, और ये सब्जेक्ट आप आराम से 2 महीने में तीनों कर सकते हो. ठीक है, इस साल में आपको 8-9 महीने मिलेंगे. ठीक है, इस साल में अगर आप थर्ड ईयर में ही सीरियस हुए हो, फर्स्ट सेकंड आपका पास हो गया, तो इस साल में आप क्या करोगे कि पिछले जो भी सब्जेक्ट बच गए, 3 तो फर्स्ट प्रॉफ के, 4 सेकंड प्रॉफ के, 7 बच गए. अगर मान लो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट करने पड़ाई, तो उन 7 में से कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म करने हैं आपको इस साल. ठीक, तो थर्ड ईयर के एंड तक जितना भी आप बैकलॉग खत्म करना चाहते हो कर लो. पर जब आप फाइनल ईयर में आओगे मेडिसिन वाले प्रॉफ में, उसमें आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ फाइनल ईयर करना है. फाइनल ईयर में सिर्फ फाइनल ईयर, बाकी कुछ हुआ है या नहीं हुआ. ठीक, तो फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्काइनी, पीड्स, पहले इतने सब्जेक्ट ही इतने सारे हैं. ठीक है, तो फाइनल ईयर में कभी भी आप पुराना बैकलॉग खत्म करने की नहीं सोचोगे, और सेकंड और थर्ड ईयर में कभी भी आगे का करने की नहीं सोचोगे. अगर आप फार्मा वाले प्रॉफ में हो तो आप ईएनटी करने की नहीं सोचोगे, मेडिसिन करने की नहीं सोचोगे. तो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने बनाया है ना जो सीक्वेंस, कुछ सोच के बनाया होगा. ठीक है, ऐसे नहीं है कि रैंडमली बना दिया. वहां पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आपको उस सीक्वेंस में ही जाना चाहिए. तो अगर आप सेकंड ईयर में आपको सोचा है तो फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश कर लो इस साल, और बचे हुए आप नेक्स्ट ईयर में करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको टाइम मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच सर. Okay, so that brings us to the end of this episode, sir. I would like to thank you for sparing your time from your busy schedule. Once again, I wish you a very happy Teachers' Day. Thank you, Shashwat. Thank you very much. It was a pleasure talking to all the students and taking their queries. You can provide my mobile number to all of your students. You can write it down, or I can type here. You can type here. सबको चला जाएगा नहीं, टू एवरीवन इन मीटिंग कर देते. सो दिस इज माय फोन नंबर गाइस. यू कैन टॉक ऑन व्हाट्सएप, और कॉल भी कर सकते हो कभी भी, बट भाई रात को 11-12 बजे मत किया करो यार, बीवी शक करती है. ठीक है, तो अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी टाइम यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी. ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज आई फील द स्टूडेंट्स आर द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ. And best wishes, and do keep in touch. Sure, sir. Thank you so much. I see a lot of thank you and happy Teachers Day messages in the comment section as well. Thank you very much. Yes. Okay. I would like to thank again Dr. Rajneesh Raj, State President, IMA MSN UP, Dr. Rahul Anand, General Secretary, IMA MSN UP, for organizing this event on Teachers Day. I am also grateful to the coordinators for this event, Harshit Chauhan, Harsh Srivastav, and Shashwat Singh. This is Shashwat Sanket signing off. Thank you so much, sir. Bye-bye.